Hello students, today we are going to discuss class 11 chemistry chapter number 2 atomic structure NCERT numericals. Already we have completed numericals till 35. Today we are going to complete this chapter whole. So let's start question number 36. Question number 36 is 2 into 10 to the power 8 atoms of carbon are arranged side by side. Calculate the radius of carbon atom if the length of this arrangement is 2.4 centimeter. First of all, listen this question very carefully. Question is 2 into 10 to the power 8 atoms of carbon are arranged side by side. Remember the words whatever are written in the questions. Calculate the radius of carbon atom if the length of this arrangement is 2.4 centimeter. First of all, what is the length of arrangement? It's 2.4 centimeter, right? So after then you can see here the number of carbon atom present is equal to 2 into 10 to the power 8. And diameter of carbon atom, what will the diameter? Means whatever the length is given divided by the number of atoms, right? So the length is 2.4 centimeter. If you want to convert this 2.4 centimeter into meter, how you'll convert? It's 2.4 into 10 to the power minus 2 meter divided by 2 into 10 to the power 8, right? So as you divide, you will get 1.2 into 10 to the power minus 16 meter. How you can see here, it's not 16, it's by mistake. Here it will be 10. Okay, here it will be 10, not 16. Here it's 10 meter. So what will be the radius of carbon atom? Radius of carbon atom will be diameter upon 2. Diameter already we have got. See, we know very well 2.4 divided by 2, it's 1.2, and this 10 to the power 8, it will go up, so it will become 10 to the power minus 10, right? So what will be the radius of carbon atom? Radius of carbon atom is equal to diameter upon 2. So 1.2 into 10 to the power minus 10 meter divided by 2, that is equal to 6.0 into 10 to the power minus 11 meter. Why 11 meter? You know very well, because here 1.2 divided by 2 is 0.6, so that's why 6.0 into 10 to the power minus 11 मीटर. चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ. सो आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 36. अब जो है क्वेश्चन नंबर 37, द डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज 2.6 एंगस्ट्रॉन. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जिंक इन पिकोमीटर एंड the number of atoms present in the length of 1.6 centimeter if the zinc atoms are arranged side by side lengthwise. देखिए कोई भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए. जैसे आप समझ जाओगे क्वेश्चन, फिर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा. तो सबसे पहले आपको समझना है कि रेडियस क्या होगा. व्हाट इज़ द रेडियस? रेडियस आप लोग शायद 7th 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे होंगे कि रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, राइट? तो रेडियस ऑफ जिंक एटम इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 and diameter is given in the question. What is the diameter of zinc atom? It is 2.6 angstrom. What is it? 2.6 angstrom. तो जैसे आपने देखा कि आखिर जिंक का जो डायमीटर है 2.6 एंगस्ट्रॉन है. एंगस्ट्रॉन का मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर आ जाएगा. तो ये हमारा रेडियस हो गया. अगर आप इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, याद कीजिए एंगस्ट्रॉन को पिकोमीटर. एंगस्ट्रॉन का मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर और पिकोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर. तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1.3 है और आपको यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 12 बनाना है. तो क्या करोगे आप, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12 और ये हो जाएगा 130, राइट? 130 पिकोमीटर. Remember here already it's given in the question, diameter is given in the question. You have to just find the radius. And radius is diameter upon 2. Diameter was given in angstrom. You have to convert in picometer. It's very easy, I think so. The second question is the length of arrangement is 1.6 centimeter. What is the length of arrangement? It's 1.6 centimeter. The diameter of the zinc atom is given in the question 2.6 into 10 to the power minus 10 meter. Now the number of zinc atom present in the arrangement. What will be the number of atoms? Yeah, number of atoms. First of all, the length of arrangement upon the diameter. Length of it's 1.6 into 10 to the power minus 2 meter, and the radius, sorry, here diameter is given 2.6 into 10 to the power minus 10 meter. As we divide, we get the value 0.6153 into 10 to the power 8 meter. That is equal to 6.153 into 10 to the power 7. So these are the number of zinc atoms.
Now let's come towards the question number 38. Question is, a certain particle carries 2.5 into 10 to the power minus 16 carbon of static electric charge. Calculate the number of electrons present in it. Here the certain particle carries 2.5 into 10 to the power minus 16 carbon. Not carbon, it's coulomb, okay? Because it's electric charge, right? So you can see here a certain particle carries 2.5 into 10 to the power minus 16 coulomb of static charge. So what you have to calculate the number of electrons present in it. So charge of one electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge is carried by one electron. So the number of electron carrying a charge of 2.5 into 10 to the power minus 16 coulomb is 2.5 into 10 to the power minus 16 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. After dividing, you will get the value 1.560 into 10 to the power 3 coulomb. If you will multiply, then it will be 1560 coulomb, right? So this was our question number 38. Now let's go towards the question number 39. In Millikan experiment, static electric charge on the oil drop has been obtained by shining X-rays. If the static electric charge on the oil drop is minus 1.282 into 10 to the power minus 18 coulomb, calculate the number of electrons present on it. क्वेश्चन को समझना है. मिलिकन का एक्सपेरिमेंट में हमें एक्सरे से जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज मिला था ऑयल ड्रॉप का, दैट वाज माइनस 1.282 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम. आपको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो सबसे पहले चार्ज जो है ऑयल ड्रॉप का 1.282 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम. चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.6022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. हाँ, याद रखना ये एक्यूरेट वैल्यू. आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम भी ले सकते हो. तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 1.282 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम को, तो आपको वैल्यू आएगा 0.8001 इंटू 10 टू द पावर 1. जब आप इस 10 टू द पावर 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8.001. दैट इज व्हाट इज दैट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑयल ड्रॉप्स. So now let's move towards the question number 40. In Rutherford's experiment, generally the tin foil of heavy atoms like gold, platinum, etc. have been used to be bombarded by the alpha particles. If the tin foil of the light atoms like aluminium is used, what difference would be observed from above result? A thin foil of lighter atoms will not give the same result as given with the foil of heavier atoms. Lighter atoms would be able to carry very little positive charge, hence they will not cause enough deflection of alpha particles. सीधा सीधी समझ जाओ कि अगर आप किसी भी थिन फॉइल को लोगे गोल्ड के बदले, याद रखो गोल्ड इज़ अ हैवी मेटल, राइट, हैवी एटम, और उसके बदले अगर आप एल्युमिनियम ले रहे हो तो एल्युमिनियम पे उतने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है नहीं जितना गोल्ड के पास है. तो कहाँ से पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल से डिफ्लेक्शंस होंगे, राइट? तो सीधा सीधी समझ जाना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है, और इजीली तरीके से हमें उसका आंसर देना है. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41. सिंबल्स ब्रोमीन के दिए हुए हैं दो आइसोटोप्स 79 एंड 35. 35 एटॉमिक नंबर, 79 मास नंबर हियर, एंड ब्रोमीन 79 कैन बी रिटन, whereas the symbol of bromine 79 35 and bromine 35 are not acceptable. Answer verified. सीधा सीधी समझो, कोई भी एलिमेंट को आप कैसे लिखते हो? एलिमेंट में एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों लिखते हो ना, या सीधे सीधे एटॉमिक नंबर को? अच्छा, एक चीज़ और, एटॉमिक नंबर कहाँ पे लिखते हो, ऊपर या नीचे? याद रखना किसी भी एलिमेंट का जो हमारा लेफ्ट साइड है उसके नीचे में, मतलब बॉटम में हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर में हम लोग मास नंबर लिखते हैं, राइट? याद कीजिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज़ देख लीजिए, सिंबल ब्रोमीन 35 79 एंड 79 ब्रोमीन कैन बी रिटन. क्या ये लिखा जा सकता है? वेयर एज द सिंबल ये होता है, और ये क्या हम इस तरह से एटॉमिक नंबर ऊपर में लिख सकते हैं? या सीधा सीधी बोल दिया इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है, ये आपको आंसर वेरीफाई करना है. तो यहाँ पे देख लीजिए आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है. द जनरल कन्वेंशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट अलॉन्ग विथ इट्स एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर इज x इंटू एजेड. देख लीजिए किसी भी एलिमेंट्स को अगर आपको उसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर और वो एलिमेंट लिखना है तो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हेंस ब्रोमीन 35 79 इज एक्सेप्टेबल बट 35 81 is not acceptable. Bromine 79 can be written but bromine 35 cannot be written because the atomic number of an element is constant but the atomic mass of an element depends upon the relative abundance of its isotopes. Hence it is necessary to mention the atomic mass of an element. कहने का मतलब सीधा सीधी समझ जाइए
कि हर एक एलिमेंट का अलग अलग आइसोटॉप्स हैं, अलग अलग मात्रा में वो पाए जाते हैं, तो जिस मात्रा में वो पाए जाते हैं तो उनका मास नंबर चेंज होगा, लेकिन किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं हो सकता है। याद रखना, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो सकता है। अगर व्यक्तिगत एलिमेंट है, जैसे कार्बन का आप लोगे तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स है, 12, 13 एंड 14, बट द एटॉमिक नंबर इज सेम। आइसो बार में आप बोलोगे सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एलिमेंट्स, तो डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो डिफरेंट प्रोटॉन्स होंगे, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होंगे। इसीलिए याद रखना कि आप मास इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट यू कांट रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर। गॉट इट? नाउ लेट्स कम क्वेश्चन नंबर 42. An element with the mass number 81 contains 31.7% each more neutrons as compared to protons, assigned with the atomic symbol. कोई एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर जो है 81 है, जो प्रोटॉन से 31.7% ज़्यादा न्यूट्रॉन है। अब इस एटॉमिक सिंबल को आपको लिखना है। देखो भाई साहब, मास नंबर दिया हुआ है, x प्लस इतना परसेंटेज आपको न्यूट्रॉन्स है। अब यही चीज़ आपको लिखना है। देखो, लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एलिमेंट बी x, सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एलिमेंट x प्लस 31.7% ऑफ x। यही दो को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? मास नंबर हो जाएगा। x प्लस 31.7% ऑफ x करोगे तो 0.317x हो जाएगा, तो दैट इज़ 1.317x। कैसे? ये 1x है और ये इतना x है, इस दोनों को ऐड करोगे तो 1.317x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास नंबर दिया हुआ है। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर है हमारा 81, x प्लस 1.317x इज इक्वल टू 81। ये x क्या है? प्रोटॉन, और ये क्या है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर, एटॉमिक मास। तो ये एटॉमिक मास 81 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस दोनों को ऐड करोगे 2.317x इज इक्वल टू 81, x इज इक्वल टू 81 अपॉन 2.317, x इज इक्वल टू 35। प्रोटॉन 35, याद करो 35 किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है? बता सकते हो आप लोग? मैं बोल सकता हूँ, क्रिप्टन से पहले क्या आता है? ब्रोमीन। Hence the number of protons in the element is X is 35. Since the atomic number of atom is defined as the number of proton present in the nucleus, the atomic number of given element is 35. So the atomic symbol of the element is 3581. समझ में आया? ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, उसका मास नंबर 81 है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, बस इतना याद रखना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एंड इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ protons is equal to number of electrons. Now let's come towards the question number 43. Question number 43 कह रहा है, an ion with the mass number 37 possesses 1 unit of negative charge. If the ion contains 11.1% more than neutrons than the electrons, find the symbol of the ion. ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा झटका दिया है, राइट? बट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस सीधा सी समझना है। एटॉमिक मास 37 है, राइट? जिसके ऊपर में एक निगेटिव चार्ज, कोई भी एलिमेंट है, एक्स मान लीजिए एलिमेंट है, उसके ऊपर में माइनस चार्ज है, जिसका एटॉमिक मास 37। मास से कोई लेना देना नहीं होता, याद रखना आप लोग। इलेक्ट्रॉन के ऊपर में एक निगेटिव चार्ज का मतलब हो गया एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास हो गया। जितना मान लीजिए अगर एक उसका एटॉमिक नंबर है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन इफ़ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर देन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से वो 11.1% ज़्यादा कंटेन कर रहा है, राइट? इस चीज़ को ध्यान से सुनना, क्योंकि यही हमारा बेस है क्वेश्चन का। इफ़ द आयन कंटेन्स 11.1 more percentage, 11.1 more percentage neutrons than the electrons, find the symbol of the ion. Let the number of electrons in the ion carry a negative charge be x, then the number of neutrons present कितना हो जाएगा? x plus 11.1% of it, x plus 0.111x, 1.111x. So the number of electrons in the neutral atom, न्यूट्रल एटम में कितने होंगे? क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए न्यूट्रल एटम में एक माइनस कर देंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। When an ion carries a negative charge, it carries an extra electron. या मैंने वही कहा ना कि अगर कोई किसी भी एलिमेंट के ऊपर में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, अगर मान लीजिए उसके ऊपर में कुछ चार्ज है -1 या माइनस खाली चार्ज है, उसका मतलब उसमें जितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसमें एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रल एटम का क्या हो जाएगा? उसमें से एक माइनस कर दो क्या? सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूट्रल एटम कितना हो जाएगा? x माइनस 1 हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारा मास जो है 37 है, ये हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स x माइनस 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1.111x इज इक्वल टू 37।
अब जो है आप माइनस कर दीजिए, x माइनस 1 प्लस इतना, इस दोनों को ऐड करोगे तो 2.111x माइनस 1 इज इक्वल टू 37, तो 2.111x इज इक्वल टू 37 प्लस 1 38, तो x इज इक्वल टू 38 अपॉन 2.111, इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा। वैसे तो अगर 2 से डायरेक्टली करते तो 19 होता, लेकिन रेशियो में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, मतलब 18 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग एग्जैक्टली 18 ले लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 18 माइनस 1 दैट इज 17, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 17, एटम करेस्पॉन्ड टू आयन दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन हमारा 17 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है वो क्लोरीन है। क्लोरीन के ऊपर में एक निगेटिव चार्ज है जिसका एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 37 एंड कैरीज 1 निगेटिव चार्ज। गॉट इट। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किसी भी क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मजा आएगा, राइट। एन आयन विद द मास नंबर 56 कंटेन्स 3 units of positive charge and 30.4% more neutrons than electrons assigned with the symbol to this ion. 56 इसका एटॉमिक मास है, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन से इतना ज़्यादा। मतलब सीधा सीधी पहले आप सोच लीजिए 3 पॉजिटिव चार्ज है, x के ऊपर में 3 प्लस है और इलेक्ट्रॉन्स का 30.4% मोर न्यूट्रॉन है। तो आपको इसका सिंबल लिखना है, क्या एलिमेंट होगा, क्या वगैरह वगैरह। सो लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, मान लीजिए कोई एलिमेंट है A जिसके ऊपर में 3 प्लस है, इसको हम लोग x मान लेते हैं। सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इट x प्लस 30.4% ऑफ x, क्योंकि x का जो है ये 30.4 प्लस मोर न्यूट्रॉन्स है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस 30.4% ऑफ x। तो अगर इसको आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 0.304, दोनों को ऐड करोगे तो 1.304x। तो ट्राई पॉजिटिव है, ट्राई पॉजिटिव का मतलब हो गया 3 प्लस। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम कितना हो जाएगा, x प्लस 3। क्यों 3 प्लस है ना, बट 3 प्लस का मतलब क्या हुआ, तो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो न्यूट्रल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन आपको डालना पड़ेगा। तो हियर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू x प्लस 3। तो न्यूट्रल एटम का जब ये इलेक्ट्रॉन है तो इतना ही प्रोटॉन भी होगा। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूट्रल एटम x प्लस 3। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है आपका x प्लस 3, न्यूट्रॉन है 1.304x और दिया हुआ है हमारा मास नंबर 56। सो x प्लस 3 प्लस 1.304x इज इक्वल टू 56। इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2.304x इज इक्वल टू 56 माइनस 3। 56 में से 3 माइनस करोगे तो हो जाएगा 53, राइट। 56 माइनस 3 इज इक्वल टू 53। ये 3 इधर आएगा माइनस, ये 1x प्लस 1.304x, दोनों को ऐड करोगे 2.304x इज इक्वल टू 53, x इज इक्वल टू 53 अपॉन 2.304 डिवाइड करोगे तो वैसे तो अगर आप 53 को 2 से डिवाइड करते तो कितना होता, 2 2 जा 4 और फिर ये 13, 2 6 जा 13, राइट। कितना 26.5, लेकिन यहाँ पे 2.304 है। अब डिवाइड करना, समथिंग आएगा रेशियो में 23 पॉइंट समथिंग समथिंग, बट हम लोग क्या मान लेंगे 23। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23 प्लस 3। क्यों 23 प्लस 3, क्योंकि याद कीजिए कि न्यूट्रल एटम का हमें निकालना है। ये हमारा कितना है, x का वैल्यू जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के साथ हमारा निकला है, राइट। तो x का वैल्यू पॉजिटिव चार्ज के साथ है हमारा 23। तो न्यूट्रल एटम के लिए कितने हो जाएंगे, 23 प्लस 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज 26। तो सिंबल क्या हो जाएगा, आयरन हमारा 26 एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर 26, मास नंबर 56 और 3 प्लस पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 44। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 45। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन फ्रॉम माइक्रोवेव ओवन, एम्बर लाइट फ्रॉम द ट्रैफिक सिग्नल, रेडिएशन फ्रॉम FM रेडियो। इसको आपको अरेंज करना है, किसका फ्रीक्वेंसी कम है, उससे ज़्यादा किसका, उससे मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। 5 क्वेश्चन है टोटल। कॉस्मिक रेज फ्रॉम आउटर स्पेस एंड एक्स रेज। 5 कौन कौन से हैं, रेडिएशन फ्रॉम माइक्रोवेव ओवन, एम्बर लाइट फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल, रेडिएशन फ्रॉम FM रेडियो, कॉस्मिक रेज फ्रॉम आउटर स्पेस एंड एक्स रेज। तो इसका सबसे कम कॉस्मिक रेज, उससे ज़्यादा एक्स रे, उसके ज़्यादा रेडिएशन फ्रॉम माइक्रोवेव ओवन, उससे ज़्यादा एम्बर लाइट, उससे ज़्यादा रेडिएशन ऑफ FM रेडियो।
द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रिक्वेंसी इज एज फॉलोइंग। इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर है, देख लीजिए। सबसे ज़्यादा जो होता है रेडिएशन फ्रॉम एफएम रेडियो का होता है, उससे कम अम्बर लाइट, उससे कम रेडिएशन फ्रॉम माइक्रोवेव ओवन, उससे कम एक्सरे, उससे कम कॉस्मिक रेज। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालोगे तो इस तरह से हो जाएगा। याद रखना, सीधा सीधी मैं तुमको कह देता हूँ कि ये तुम्हारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या कम होता है, राइट? And I hope all of you are reading NCERT textbook, so easily you can write this answer. Now come, let's see question number 46. Nitrogen laser produces a radiation at a wavelength of 337.1 nanometer. If the number of photons emitted is 5.6 into 10 to the power 24, calculate the power of this laser. Question को समझने की कोशिश कीजिए। लैम्बडा का वैल्यू दिया है, वेवलेंथ 337.1 नैनोमीटर। नंबर ऑफ फोटोन्स भी दिया हुआ है 5.6 इंटू 10 टू द पावर 24। कैलकुलेट क्या करना है? पावर ऑफ लेजर मतलब एनर्जी विच इज इमिटिंग द फोटोन्स और इमिट्स द फोटोन्स। तो पावर इज इक्वल टू ई, याद कीजिए, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता था। यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स है, सो एन इंटू एच सी बाई लेमडा। एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटोन्स, एच प्लैंक कांस्टेंट, सी क्या हो जाएगा हमारा? वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, और लेमडा वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। सब वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे सारा दिया हुआ है। एन की वैल्यू हमारा 5.6 इंटू 10 टू द पावर 24, एच की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको डिवाइड करना है लेमडा से। लेमडा की वैल्यू दिया हुआ है 337.1 नैनोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया, 10 टू द पावर -9 मीटर। इस तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इससे डिवाइड करने पर आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा 0.3302 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल। जब इसको आप एक पॉइंट आगे कर दीजिए और 10 टू द पावर 6 बना दीजिए, 3.33 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, जो हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में सीखा भी है कि क्यों किया जाता है 3.33, राइट? हैंस द पावर ऑफ द लेजर लाइट इज 3.33 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 46। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। Neon gas is generally used in signboards. If it emits strongly at 616 nanometer, calculate the frequency of emission. Distance traveled by the radiation is in 30 seconds. Energy of quantum and the number of quanta present if it produces 2 joule of energy. बहुत कुछ दिया हुआ क्वेश्चन है, बहुत कुछ मांग रहा है। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। नियॉन गैस जनरली कहाँ पे यूज होता है? साइन बोर्ड्स में। अगर ये 616 नैनोमीटर, इफ इट्स इमिट स्ट्रांगली एट 616 नैनोमीटर, मतलब ये आपका वेवलेंथ दे दिया है। कैलकुलेट क्या करना है? फ्रीक्वेंसी न्यू निकालना है। उसके बाद आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस, 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा। तीसरा एनर्जी ऑफ क्वांटम, ई निकालना है। चौथा नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूसेस 2 जूल ऑफ एनर्जी। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड 616 नैनोमीटर, 616 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। ये हमारा दिया हुआ लेमडा का वैल्यू निकालना है। फ्रीक्वेंसी याद कीजिए, C इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू होता था, तो न्यू इज इक्वल टू C बाई लेमडा, न्यू स्पीड ऑफ लाइट, और ये लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 616 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। इस दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 4.87 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 9। अब क्वेश्चन बोलोगे सर ये 10 टू द पावर 3 क्यों? तो यहाँ पे जब डिवाइड करोगे इसलिए यहाँ पे 10 टू द पावर -3 सेकेंड। एग्जैक्ट वैल्यू न्यू इज इक्वल टू 4.87 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड। ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकल गया। दूसरा वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, कितने सेकेंड में? 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रेडिएशन इन 30 सेकेंड। भाई साहब 1 सेकेंड में इतना होता है, तो 30 सेकेंड में कितना होगा? सीधा सीधे मल्टीप्लाई 3 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर 8, तो 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 कर देंगे, राइट? बोलो क्यों? भाई 1 सेकेंड में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बताओ? 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो 30 सेकेंड में कितना होगा? उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। अब एनर्जी ऑफ क्वांटम ई निकालना है। ई इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू, एच प्लैंक कांस्टेंट और न्यू फ्रीक्वेंसी जो हमने अभी जस्ट निकाला है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 4.87 इंटू 10 टू द पावर 14। इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे 32.27 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल आएगा। उसके बाद आ जाइए एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एक फोटोन में कितना एनर्जी होगा?
ये तो अभी जस्ट आपने निकाला है भाई, E इज इक्वल टू एच न्यू 32.27 इंटू 10⁻20। अब आपको पूछ रहा है कि अगर इतना जूल ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन वन क्वांटम, तो 2 क्वांटा में कितना, द नंबर ऑफ क्वांटा इन 2 जूल ऑफ एनर्जी कितना होगा भाई साहब। 1 जूल में इतना है तो 2 जूल में कितना, 2 जूल अपॉन 32.27 इंटू 10⁻20 जूल, दैट इज इक्वल टू 6.19 इंटू 10⁻80। जब इसको डिवाइड करोगे आप 2 अपॉन 32.67 इंटू 10⁻20 को, तो 6.19 इंटू 10⁻18, इसी को आप 6.2 इंटू 10⁻18 भी लिख सकते हो। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 48। किसी भी क्वेश्चन को पहले क्या करना है, समझना है, समझने के बाद बनाना है। किसी भी चीज़ को नहीं समझ में आ रहा है, पॉज करो, रिपीट करो, फिर से देखो। एक क्वेश्चन समझ गए, उसके बाद 1 मिनट के लिए थोड़ा माइंड पीस एंड काम कर लो। अगर मेरा वीडियो आपको फास्ट लग रहा है, नॉट एन इश्यू, आप इसको शांति से दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। और रिपीट करके देखने के बाद फिर भी अगर नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं कि सर मैं ये क्वेश्चन नंबर ठीक से नहीं समझ पाया, राइट। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, सिग्नल ऑब्जर्व फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार्स और स्टार्स आर जनरली वीक। इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, signal observed from the distant stars are generally weak. If the photons detector receives a total of 3.15 into 10 to the power minus 18 joule from the radiations of 600 nanometer, calculate the number of photons received by the detector. देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देख लो यहाँ पे तुम्हारा नैनोमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले तुम्हें तुरंत दिमाग लगाना कि ये वेवलेंथ ही होगा। दूसरा, फोटोन्स दिया हुआ है आपको, यहाँ पर दिख रहा है फोटोन्स 3.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। जूल है मतलब एनर्जी की वैल्यू दी हुई है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है, मतलब याद करो E इज इक्वल टू एच न्यू होता था फॉर्मूला, लेमडा दिया हुआ है मतलब E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। E की वैल्यू है, लेमडा की वैल्यू है, C का वैल्यू पता है, H का वैल्यू पता है, हमें सिर्फ नंबर निकालना है। E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा, तो लेमडा एन क्या हो जाएगा, E इंटू लेमडा अपॉन एच, राइट। तो अब सबसे पहले आप जो है याद कीजिए एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू को चेंज कर दिया हमने लेमडा में, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। लेमडा वेवलेंथ, H प्लांक कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन। तो सबसे पहले E की वैल्यू आप निकालेंगे, सब मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर वैल्यू आएगा 3.313 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। सो द नंबर ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन आपका निकल गया, E का वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन्स रिसीव्ड विथ, यहाँ पे E की वैल्यू दी हुई है भाई साहब, आपने एक E की वैल्यू निकाली है और यहाँ पर E की वैल्यू दी हुई है, तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन्स। तो याद करना है, नंबर ऑफ फोटोन्स रिसीव्ड विथ इतना एनर्जी 3.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल ऑफ एनर्जी, उसका एक एनर्जी से डिवाइड कर दोगे। वन एनर्जी की वैल्यू 3.313 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, और यहाँ पर एनर्जी दिया हुआ है 3.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। दोनों को डिवाइड करोगे 9.5 विच इज अप्रॉक्सीमेटली टू 10। याद करना, 5 या 5 से बड़े के बाद हम लोग डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हो जाएंगे, 10। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 48। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। लाइफ टाइम्स ऑफ द मॉड्यूल्स इन द एक्साइटेड स्टेट्स are often measured by using pulsed radiation source of duration nearly in the nanosecond range. If the radiation source has the duration of 2 nanoseconds and the number of photons emitted during the pulse source is 2.5 into 10 to the power 15, calculate the energy of the source. देखो जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जैसे ही जो दिया हुआ है अगर वो लिखते जाओगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा निकालना क्या है। एनर्जी ऑफ द सोर्स E निकालना है, ड्यूरेशन 2 नैनोसेकेंड्स, नंबर ऑफ फोटोन्स 2.5 इंटू 10 टू द पावर 15। तो जो दिया हुआ है पहले वो लिख दो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हमारा दिया हुआ था 2 नैनोसेकेंड, तो 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड, इसको डिवाइड करोगे तो 5.0 इंटू 10 टू द पावर 8 पर सेकेंड। ये न्यू की वैल्यू निकल गई। टाइम दिया हुआ था, टाइम से क्या निकलेगा, फ्रीक्वेंसी निकलेगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, राइट। तो हमारा फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब फ्रीक्वेंसी से हमारा क्या निकलेगा, नंबर ऑफ फोटोन्स निकलेगा। कैसे, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू एन एच न्यू डालेंगे, तो हमारा क्या क्या वैल्यू दिया हुआ था, एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ था
फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया, तो डेफिनेटली हम लोग नंबर ऑफ फोटॉन्स इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? टाइम पीरियड दिया हुआ था, उसके बाद फोटोन दिया हुआ, कैलकुलेट द एनर्जी, ई की वैल्यू निकालना है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, राइट। तो यहाँ पर n हमारा वैल्यू दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻15, क्योंकि याद कीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है n की वैल्यू, E इज इक्वल टू एन एच न्यू, तो n की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। h की वैल्यू है, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और ये किसकी वैल्यू है बता सकते हैं आप? अभी जस्ट हमने निकाला है न्यू 5.0 इंटू 10⁸ इस तीनों को मल्टीप्लाई करने पर एग्जैक्ट वैल्यू 8.282 इंटू 10⁻10 जूल। हैंस द एनर्जी ऑफ द सोर्स इज 8.282 इंटू 10⁻10 जूल। समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट एब्जॉर्प्शंस ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व एट 589 एंड 589.6 नैनोमीटर वेवलेंथ दिया हुआ है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, न्यू निकालना है, ऑफ ईच ट्रांजिशन एंड डिफरेंस बिटवीन द टू एक्साइटेड स्टेट। मतलब आपको डिफरेंस निकालना है, दोनों का λ1 λ2 का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले याद कीजिए, वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन 589 नैनोमीटर, उसका मतलब 589 इंटू 10⁻9 मीटर। दूसरा एसोसिएटेड है 589.6, तो उसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे, 589.6 इंटू 10⁻9 मीटर। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, याद कीजिए, पहले वाले का निकालते हैं तो सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और λ1 हमारा अभी जस्ट निकाले हैं 589 इंटू 10⁻9 मीटर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों को डिवाइड करेंगे 5.093 इंटू 10⁻14। पूछोगे क्यों 14? 3 को 589 से डिवाइड करो और ये 8 + 9 करोगे तो 17, जब वो पॉइंट में आएगा तो 5.093 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। अब सेकेंड वेवलेंथ का बस यहाँ पे 589 था, यहाँ पे 589.6 है, उसको भी डिवाइड करोगे तो 5.088 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। ये दोनों वैल्यू आपका न्यू1 और न्यू2 निकला। याद कीजिए, एनर्जी डेल्टा ई का वैल्यू क्या होता है? न्यू1 माइनस न्यू2, एच न्यू1 माइनस एच न्यू2, एच कॉमन न्यू1 माइनस न्यू2। एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, वैल्यू क्या होता है? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इस दोनों को माइनस कीजिए, 5.093 इंटू 10⁻14 माइनस 5.088 इंटू 10⁻14, मतलब सीधा सीधी समझ जाओ ना भाई साहब, 093 माइनस 088 कितना होगा? 15 0.15 या 0.05, देख लीजिए यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, 0.093 और 88 है, राइट, 088, राइट। तो इस दोनों को माइनस करने पर आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 0.005 इंटू 10⁻14। इसको आप प्लांक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.31 इंटू 10⁻22 जूल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर हाफ सेंचुरी, मतलब 50। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 51। एक बात बताना, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो कोई भी चीज़ तो एक बार पहले इस चैप्टर का वीडियो देख लेना। मैंने इस चैप्टर में हर एक टर्म को डिटेल से एक्सप्लेन किया। अगर फिर भी तुम्हें नहीं समझ में आए कोई भी टर्म पूरे चैप्टर का, सबसे पहले मेरा यूट्यूब का चैनल जो नीचे में सोनू कुमार लिखा होगा उस लिंक को खोलना, उसमें प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में क्लास 11 में जाना, उसमें सारे चैप्टर्स के नेम के साथ सारा डिस्क्राइब है। चैप्टर नंबर 2 के सारे वीडियोस देख लेना। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो जिस वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है उस वीडियो के नीचे मैं आपको कमेंट करूँगा। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन नंबर 51। द वर्क फंक्शन फॉर सीजियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ याद करो बच्चा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आई हैव एक्सप्लेन्ड। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इफ द सीजियम एलिमेंट इज irradiated with the wavelength of 500 nanometer. Calculate the kinetic energy and the velocity of the ejected photoelement. बहुत इजी है, क्योंकि देखो वर्क फंक्शन हमारा दिया हुआ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन क्या होता है? hc बाय लैम्डा नॉट, और लैम्डा नॉट का वैल्यू hc बाय वर्क नॉट, मतलब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वर्क फंक्शन जो दिया हुआ है। याद करो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, उसी से उसके बाद मैंने बताया था वर्क फंक्शन। तो ये हमारा वर्क फंक्शन का एक्सप्रेशन था, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट hc बाय वर्क फंक्शन, तो यहाँ पर ये जो लैम्डा नॉट है यही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, h प्लांक कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन,
ये सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6.53 इंटू 10⁻⁷ मीटर आएगा। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है तुम्हारा इतना मिल गया, ये नैनोमीटर में, अब इसको चेंज कर दो, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये नैनोमीटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 10⁻⁹ हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 653 नैनोमीटर आ गया। अब याद करो एक्सप्रेशन से, W0 इज इक्वल टू h न्यू नॉट, तो न्यू नॉट क्या हो जाएगा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला न्यू नॉट, वर्क फंक्शन अपॉन h, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। क्यों, ये दिया हुआ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है, चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, इसीलिए 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल डिवाइडेड बाय प्लांक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, राइट। देखो यहाँ पे इसको जूल में मैंने कन्वर्ट किया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस दोनों को 1.9 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया प्लांक कांस्टेंट पे, तो आपका वैल्यू आ गया 4.593 इंटू 10⁻14 per second. Hence the threshold frequency of the radiation is 4.593 into 10⁻14 per second. According to question, the wavelength used in radiation is 500 nanometer. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², इसका फॉर्मूला क्या होता है, h न्यू माइनस न्यू नॉट, राइट। तो न्यू के बदले हम लोग 1/λ लिख सकते हैं और इसके बदले 1/λ नॉट, राइट। तो hc इंटू 1/λ माइनस 1/λ नॉट, क्योंकि जानते ही हो यार कि मतलब hc/λ लिखो या h न्यू लिखो, बोथ आर इक्वल, राइट। हमने क्या किया, सिर्फ न्यू को लैम्डा में कन्वर्ट कर दिया, तो लैम्डा इज इक्वल टू, याद रखना जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इस दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा वेलोसिटी होता है, तो हमने यहाँ पे वही किया, न्यू को लैम्डा में चेंज कर दिया, तो 1/λ, ये 1/λ नॉट। h की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इस दोनों को एलसीएम लोगे तो लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा, ये सारा वैल्यू जब पुट अप करोगे प्लांक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना होगा, फिर लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट, सब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने पर फाइनल आंसर आएगा 9.3149 इंटू 10⁻22। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड photo electron is equal to 9.3149 into 10⁻22. Since kinetic energy is equal to हाफ mv², ये हमारा वैल्यू जो आया है किसके बराबर है, हाफ mv² के बराबर है। तो इससे अगर v निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m अंडर रूट, राइट। तो v इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m अंडर रूट, तो ये जो आपका वैल्यू निकला है काइनेटिक एनर्जी 9.3149 इंटू 10⁻22, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद यहाँ पर m की वैल्यू पुट करो, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे आप पूछ सकते हो मुझे कि सर ये मास की वैल्यू यहाँ पे कैसे 9.10939 इंटू 10⁻11 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, भाई साहब इसको अंडर रूट में डाल, राइट। और यहाँ पे देख लीजिए आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, calculate the kinetic energy and the velocity of the ejected photoelectron, velocity of the ejected photoelectron दिख रहा है आपको। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, लैम्डा नॉट की वैल्यू निकाली, फिर न्यू नॉट की वैल्यू निकाली, उसके बाद हम लोगों ने ये फॉर्मूला से hc/λ से हम लोगों ने क्या निकाला, काइनेटिक एनर्जी h न्यू माइनस न्यू नॉट से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकाला हाफ mv²। और यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 31 डालो बेटा, यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, ये यहाँ पे 31 होगा, ओके। 9.1 इंटू 10⁻31, इसको जब डिवाइड करोगे ऊपर में जाएगा -31 और यहाँ पे 20 है, तो ये ऊपर में जाएगा तो फिर यहाँ पे 11 आ जाएगा, 2.0451 इंटू 10⁻11 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यू की वैल्यू 4.52 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज 4.52 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 51। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 52। लैम्डा की वैल्यू दी हुई है। फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द सोडियम मेटल इज इरिडिएटेड विथ डिफरेंट वेवलेंथ्स, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड प्लांक्स कांस्टेंट। बहुत ही ईजी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, राइट। यहाँ पर लैम्डा नैनोमीटर में दिया हुआ है, न्यू इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड के रूप में दिया हुआ है। तो एज्यूम कीजिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एज अ लैम्डा नॉट इन नैनोमीटर, सो लैम्डा नॉट इंटू 10⁻⁹ मीटर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेडिएशन h न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv², राइट। h न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू का मतलब फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, उसी तरह वर्क फंक्शन आप 1/λ माइनस 1/λ नॉट इज इक्वल टू हाफ mv²। बात समझ में आई। h की वैल्यू क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, c हमारा स्पीड ऑफ लाइट, 1/λ माइनस 1/λ नॉट इज इक्वल टू हाफ mv²। ये सारा वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे, hc अपॉन 10⁻⁹ मीटर इंटू 1/500 माइनस 1/λ नॉट इज इक्वल टू हाफ m इंटू 2.55 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। जब ये सारा वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनली जा करके आपको लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, 540। अगर आप लोगों को ये पूरा आंसर का स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप यहाँ से वैल्यू को पुट अप कीजिए, राइट। आ गया HC, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब जो सेकेंड पार्ट है, इसी को मतलब आगे जो कंटिन्यू करेंगे, ये है हमारा सेकेंड पार्ट। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि लैम्डा नॉट की जो वैल्यू आई है किस तरह से 540 नैनोमीटर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है 540, ये फर्स्ट वाला था। उसी तरह सेकेंड जो क्वेश्चन था हमारा पार्ट बी, क्वेश्चंस इज नॉट डन ड्यू टू द इनकरेक्ट वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी गिवन इन द इक्वेशन। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये इजीली आप सेकेंड वाले में भी 540 नैनोमीटर आ जाएगा, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 52। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 53। द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सिल्वर मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द वोल्टेज ऑफ 0.35 वोल्ट व्हेन द रेडिएशन 256.7 नैनोमीटर इज यूज्ड। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन फॉर सिल्वर मेटल। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और हम क्या करना चाह रहे हैं, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन फॉर द सम, मतलब W नॉट हमें निकालना है। याद कीजिए काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी, W नॉट वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू, ये इंसिडेंट ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन से हमारा ये फॉर्मूला निकला है। अब इसको देखिए हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लीजिए, W नॉट इज इक्वल टू E माइनस काइनेटिक एनर्जी, E इज इक्वल टू hc/λ, तो hc/λ माइनस हाफ mv², राइट। तो सबसे पहले E निकाल दीजिए, H और C का तो पता ही है, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है। जब ये कैलकुलेट करोगे hc/λ आ जाएगा हमारा 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा, 4.83। क्यों आएगा, यहाँ पे E की वैल्यू 7.744 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड करोगे तो 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब आ जाइए, द पोटेंशियल अप्लाइड टू सिल्वर मेटल चेंज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, हैंस काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना है 0.35 वोल्ट, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कीजिए तो 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू E माइनस काइनेटिक एनर्जी, E का वैल्यू हमने निकाला है 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों को माइनस करेंगे 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो हमने ऊपर में निकाला था उस फॉर्मूला पे अगर हम इसको पुटअप करें, 5λ नॉट माइनस 2000 अपॉन 4λ नॉट माइनस 2000 इज इक्वल टू 5.35 अपॉन 2.55 स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारा 28.6225 डिवाइडेड बाई 6.5025, मतलब ये सारा वैल्यू पुटअप करने पर एग्जैक्ट आंसर ऑफ लैम्डा नॉट इज 539.8 नैनोमीटर, दैट इज इक्वल टू 540 नैनोमीटर। याद रखना ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, देखना इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी तुम्हारा 540 नैनोमीटर आया था, वही वैल्यू है, आपको बस सीधा सीधी ये वैल्यू याद रखना है। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Next question, question number 54. If the photon of the wavelength 150 picometer strikes an atom and one of its inner bound electrons is ejected out with a velocity of 1.5 into 10 to the power 7 meter inverse second inverse, calculate the energy with which it is bound to the nucleus. सीधा सीधी भाई साहब E इज इक्वल टू एच न्यू का मतलब एच सी बाई लेमडा, एच प्लांक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, और हमारा लेमडा का वैल्यू 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, पिकोमीटर में दिया था, मीटर में चेंज कर दिया, वैल्यू आ गई 13.252 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 जूल. एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v दिया हुआ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड. दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आ जाएगा कितना 1.025 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 जूल. Hence the energy with which the electron is bound to the nucleus can be obtained as E माइनस काइनेटिक एनर्जी. E की वैल्यू हमारा ऊपर में इतना निकला था, काइनेटिक एनर्जी इतना निकला है, दोनों को माइनस करेंगे 12.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 जूल. इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कीजिए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे तो 7.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा. फिर वापस यही फॉर्मूला, कितना आ जाएगा आंसर 540 नैनोमीटर. गॉट इट. 55. Emission transition in the Pastel series at orbit n is equal to 3 and start from orbit n and can be represented as nu is equal to 3.29 into 10 to the power 15 hertz, that is 1 upon 3 square minus 1 upon n square. Calculate the value of n if the transition is observed at 1285 nanometer. Find the region of the spectrum. मतलब सीधा सीधी समझ जाओ, ये आपको पास्टल सीरीज का दिया हुआ है, n की वैल्यू निकालनी है, बराबर. तो वेवलेंथ ऑफ द ट्रांजिशन 1285 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. न्यू का वैल्यू दिया हुआ है 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर. न्यू क्या होता है सी बाई लेमडा, सी का वैल्यू 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड और लेमडा की वैल्यू 1285 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. दोनों को डिवाइड करोगे 2.33 इंटू 10 टू द पावर 14, राइट. तो 2.33 इंटू 10 टू द पावर 14 इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, राइट. ये हमारा सब्स्टिट्यूट करने पर ये इक्वेशन आ गया. अब 1.9 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू 2.33 इंटू 10 टू द पावर 14 डिवाइडेड बाय 3.29, ये माइनस है बेटा, 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15. जब आप इसको माइनस कर इसको दोनों को डिवाइड करोगे तो 0.7082 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर. 1 अपॉन 9 से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारा 1 अपॉन n स्क्वायर की वैल्यू 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 माइनस 0.7082 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1. 1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू 4.029 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. n स्क्वायर इधर, 4 वाला वैल्यू इधर, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन 4.029 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. इसको ऊपर ले जा 100 अपॉन 4.029, तो 100 का कितना हो जाएगा भाई 10 अपॉन 2 पॉइंट समथिंग ले लोगे तो ये 4.98 या अप्रॉक्सीमेटली 5 के बराबर हो जाएगा. हैंस द ट्रांजिशन टू बी ऑब्जर्व्ड एट 1285 नैनोमीटर, दैट इज इन एंड इन द फिफ्थ सीरीज. फिफ्थ मतलब कौन सा हुआ, द स्पेक्ट्रम लाइन्स इन द इंफ्रारेड रीजन. कौन सा रीजन, इंफ्रारेड रीजन. ये तुम्हें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा. n इज इक्वल टू फिफ्थ में हमारा कौन सा रीजन है, वो है हमारा इंफ्रारेड रीजन. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56. क्वेश्चन नंबर 56 है कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द इनिशियल ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग रेडियस 1.3225 नैनोमीटर एंड एंड्स एट 211.6 पिकोमीटर. नेम द सीरीज टू व्हिच this transition belongs and the region of the spectrum. The radius of the nth orbit of hydrogen-like particles is given by, radius का फॉर्मूला याद करो 0.529 अपॉन z इंटू n स्क्वायर. एंगस्ट्रॉन को अगर पिकोमीटर में चेंज करें तो पिकोमीटर. याद करो 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, ये होता है हमारा रेडियस. Rn इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z पिकोमीटर. अब एंगस्ट्रॉन से पिकोमीटर, रेडियस 1 का कितना हो जाएगा, R1 की वैल्यू यहाँ पर 1 इंटू 1. तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा इफ इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्बिट रेडियस 1.3225, R1 की वैल्यू दिया हुआ है नैनोमीटर, तो 1.3225 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, ये R1 की वैल्यू. और Rn मतलब लास्ट वैल्यू जो है हमारा 211.6 पिकोमीटर. तो ये 211, तो सबसे पहले यहाँ से n स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो. n स्क्वायर क्या हो जाएगा
z into r divided by 52.9, yes, z into r divided by 52.9. तो n स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई इतना, और एक दिया हुआ है n2 की वैल्यू 211.6. n स्क्वायर फर्स्ट ऑर्बिट का इतना, लास्ट ऑर्बिट का 211.6, डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगा 6.25. n1 अपॉन n2, इसका अंडर रूट करोगे तो 2.5. पता है ना 625 का अंडर रूट 25 होता है, इसीलिए 6.25 का अंडर रूट 2.5. n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू 25 अपॉन 10, 5 अपॉन 2. n1 की वैल्यू 5, n2 की वैल्यू 2. That's the transition from the fifth orbit to the second orbit. It belongs to Balmer series. लाइमन के बाद कौन सा आता है? बाल्मर सीरीज आता है ना सेकंड वाला. वेव नंबर न्यू नॉट फॉर द ट्रांजिशन, याद करो ये वैल्यू तो याद होगा तुम्हें. 1.09 into 10 to the power 7 meter inverse into 1 upon 2 square minus 1 upon 5 square. 1.097 into 10 to the power 7 into 1 upon 4 minus 1 upon 25. 4 और 25 का LCM 100. 25 minus 4, 21 upon 100 into 1.097 into 10 to the power 7. दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर 2.303 into 106 meter inverse. So the wavelength associated with the emission transition is given by lambda is equal to 1 upon, ये जो न्यू नॉट है याद करो, तो ये हमारा 1 upon 2.303 into 10 to the power 6 meter inverse, that is 0.434 into 10 to the power minus 6 meter. लैम्डा की वैल्यू 434 नैनोमीटर. क्यों? 10 to the power minus 6 मीटर है, इसको नैनोमीटर के लिए 10 to the power minus 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 434 नैनोमीटर. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 56. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57. Dual behavior of matter proposed by de Broglie led to the discovery of electron microscope, often used for highly magnified images of biological molecules and other type of material. If the velocity of the electron in the microscope is 1.6 into 10 to the power 6 meter per second, calculate de Broglie equation. याद कीजिए de Broglie. तो डी ब्रॉगली इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? h अपॉन एम वी होती है ना, याद रखना ये डी ब्रॉगली इक्वेशन h अपॉन एम वी. तो h अपॉन एम वी से h का वैल्यू हमें पता है, m का वैल्यू भी पता है, v हमारा दिया हुआ है. अब हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने पर 4.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. तो लैम्डा की वैल्यू, इसको अगर पिकोमीटर में चेंज करना है तो 455 पिकोमीटर. क्यों? मीटर को 10 टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो पिकोमीटर बन गया. ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज 455 पिकोमीटर. अब आ जाइए 58. Similar to the electron diffraction, neutron diffraction microscope is also used for the determination of the structure of molecules. If the wavelength used here is 800 picometer, calculate the characteristics velocity associated with the electron. From de Broglie equation h upon mv, lambda is equal to h upon mv. तो न्यू क्या हो जाएगा? Can you tell me what will be the value of न्यू? याद कीजिए, what will be the value of न्यू? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. सो ये v इधर डाल दो तो h अपॉन एम लैम्डा, राइट. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, प्लांक कांस्टेंट, मास ऑफ पार्टिकल, लैम्डा वेवलेंथ. सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर फाइनल आंसर 494 मीटर पर सेकेंड. सो द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन इज 494 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 59. इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर फर्स्ट ऑर्बिट 2.19 into 10 to the power 6 meter per second, calculate the de Broglie wavelength. वही वाला फॉर्मूला, h is equal to, sorry, lambda is equal to h upon mv. वैल्यू पुट अप कर दीजिए. v का वैल्यू दिया हुआ है 2.19 into 10 to the power 6 meter per second. वैल्यू पुट अप करने पर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 332 पिकोमीटर. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 60. The velocity associated with the proton moving in a potential difference of 1000 volt is 4.37 into 10 to the power 5 meter per second. If the hockey ball of mass 0.1 kg is moving with the velocity, this velocity, calculate the wavelength associated with this velocity. De Broglie equation, lambda is equal to h upon mv. Value substitution, lambda h का वैल्यू इतना, m दिया हुआ है, v दिया हुआ है. पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर जो लैम्डा की वैल्यू आई 1.516 into 10 to the power minus 38 meter. 61. If the position of the electron is measured within an accuracy of 0.002 nanometer, calculate the uncertainty moment of the electron. Suppose the momentum of the electron is h upon 4 pi into 0.05 nanometer. If there any problem is defining this value, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का वैल्यू क्या होता है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. तो डेल्टा पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स इंटू एच बाई 4 पाई.
डेल्टा एक्स की वैल्यू दी हुई है, एच का वैल्यू पता है, डेल्टा एक्स इंटू 4 पाई, 4 का वैल्यू 4 पाई का 3.14, सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर डेल्टा पी हमारा आ गया 2.637 इंटू 10⁻23 किलोग्राम मास पर सेकेंड। अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 2.637 इंटू 10⁻23 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो एक्चुअल मोमेंट क्या होगा, h/4 पाई इंटू 0.05 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा। h की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट 4, पाई की वैल्यू 3.14, सब सब्स्टिट्यूट करने पर 1.055 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। Since the magnitude of the actual movement is smaller than the uncertainty, so the value cannot be defined. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 61। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 62। The quantum number of 6 electrons are given below. Arrange them in the order of increasing energies if any of these combinations has or have the same energy list. भाई साहब यहाँ पे सारे चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू दी हुई है। n बराबर 4, l बराबर 2, m1 बराबर -2, ms बराबर, कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सा ओरिएंटेशन ऑक्यूपाई करेगा, 4d -2, -2 मतलब 1, 4d1 और ये मतलब है हमारा -½ है, -½ मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन, तो देख लो पहले 4, l बराबर 2 मतलब 4d, इलेक्ट्रॉन ms जो है नेगेटिव। तो सबसे पहले आप ओरिएंटेशन बनाना, डी ऑर्बिटल, फोर्थ एन हमारा फोर्थ पीरियड में डी ओरिएंटेशन का कौन सा इलेक्ट्रॉन है, राइट, 6th इलेक्ट्रॉन है ना, 6th इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 6th इलेक्ट्रॉन, फिर वापस ये 3d, ml की वैल्यू 1 है और ये +½ मतलब 3d3, ये 4p2, 4p2, ml बराबर 0 और ये +½ 4p2, ये 3d6 -2 लिख लीजिए, -½ है इसलिए 3d6, ये 3p1, 4p2। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ पे बता भी दिया था। n बराबर 4, l बराबर 2, तो 4d 3d 4p ऑर्बिट दिया है। 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, सो 4d 3d 4p 3d 3p एंड 4p ऑर्बिटल। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। सबसे पहले कौन सा आएगा, 3p आएगा, राइट, 3p, उसके बाद 3d, 3p, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d, राइट। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज दिया हुआ है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आए कि कैसे हुआ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कैसे हुआ सर। तो क्वांटम नंबर वाला मेरा वीडियो देख लेना आप, क्वांटम नंबर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इजीली आप समझ जाओगे। चलो 63, the bromine atom possesses 35 electrons. It contains 6 electrons in 2p orbitals, 6 electrons in 3p orbitals, and 5 electrons in 4p orbitals. Which of these electron experiences the lowest effective nuclear charge? किसका lowest effective nuclear charge? ये पूरा का पूरा आपको बताना है कि क्यों इसका lowest effective nuclear charge है। Nuclear charge experienced by an electron present in a multi-electron atom is dependent upon the distance between the nucleus and in the orbital in which the electron is present. As the distance increases, the effective nuclear charge also decreases. जितना ज़्यादा एटम बड़ा होगा मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। p अगर 4p ऑर्बिटल में है तो सबसे ज़्यादा है, farthest from the nucleus of bromine with the 35 charge, hence the electron in the 4p orbital will experience the lowest effective nuclear charge. These electrons are shielded by the electrons present in 2p and 3p orbitals along with the s orbital, therefore they will experience the lowest nuclear charge. मतलब सीधा सीधी समझ जाओ भाई साहब कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम न्यूक्लियर चार्ज। Among the following pairs of orbitals, which orbital will experience the larger effective nuclear charge? किसका सबसे ज़्यादा, 2s या 3s, जो नज़दीक में होगा। Nuclear charge is defined as the net positive charge experienced by an electron in the orbital of a multi-electron atom. The closer the orbital, the greater is the nuclear charge experienced by the electron in it. So the electrons present in 2s orbital will experience greater nuclear charge, being more closer towards the nucleus,
एज द इलेक्ट्रॉन इन द 3s। 2s और 3s में किसका ज़्यादा होगा? तो 2s का होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के नज़दीक में। 3d will experience greater nuclear charge than 4f since 4d is closer to the nucleus। सीधा सीधी 4d या 4f? 4d। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के नज़दीक में। 3p या फिर 3p will experience greater nuclear charge since it is closer to the nucleus 3f। 3p या 3f? 3f तो होता ही नहीं है, पहले 4f होता। 3p और 3d होना चाहिए, गलत लिख रहा है सब कुछ। 3d तो ये 3p जो है वो न्यूक्लियस के नज़दीक में होगा, इसलिए उसका ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। गॉट इट? 65 क्वेश्चन नंबर। द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन aluminum and silicon are present in 3p orbitals. Which electron will experience more effective nuclear charge from the nucleus? सबको पता है जो नज़दीक में है वो ज़्यादा करेगा। Nuclear charge is defined as the net positive charge experienced by an electron in a multi-electron atom. The higher the atomic number, the higher is the nuclear charge. Silicon has 14 protons while aluminum has 13 protons. Hence the silicon has greater nuclear charge because it has 14 protons and aluminum has only 13. Which has a nuclear charge 13 aluminum and 14 silicon. So the electrons in the 3p orbitals of silicon will experience a more effective nuclear charge. जितना ज़्यादा प्रोटॉन उतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सीधा सीधी समझ। आई होप। लास्ट क्वेश्चन 66। Indicate the number of unpaired electrons in p, मतलब फास्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन एंड क्रिप्टन। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये सबको बताना। सबसे पहले फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 3p3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 2 2 4 6 10 2 12 3 15। अब यहाँ पे देखो 1s2 का 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 का 2 इलेक्ट्रॉन, 2p6 का 6 इलेक्ट्रॉन, 3s2 का 2 इलेक्ट्रॉन और 3p3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो फ्रॉम द ऑर्बिटल विथ फास्फोरस हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आप सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है तो वो 3p2 हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम का 3d5 है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आयरन का 26 होता है, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और क्रिप्टन में 9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। राइट? तो ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे न्यूमेरिकल्स 36 से लेकर के 66 तक आप देख सकते हैं। जो जो मैंने आपको बताया है ये सारा न्यूमेरिकल्स आपको नोटबुक में लिख करके रेडी रखना है और जो भी डाउट होगा हम लोग इसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका मीटिंग करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी सबसेल्स आर एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 4? कितने सबसेल होंगे? मतलब n बराबर SPDF 4 0 to n-1 होता है। L इज इक्वल टू 0 to n-1 0 to 4-1 3 मतलब 0 1 2 3 फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n L कैन हैव 0 to n-1 0 1 2 3। दूसरा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबसेल हैविंग ms वैल्यू -12 फॉर n इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। माइनस ये निगेटिव स्पिन है, 4th ऑर्बिट के लिए कितने होंगे? 4 subcells are associated with n is equal to 4 sp d and f and the number of orbitals in the nth cell n square। तो n बराबर 4 है तो कितना हो जाएगा वैल्यू? 4 square that is 16 और each orbital can taken fully that it will be a 1 electron of ms minus half। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ वाले होंगे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें आप लोगों ने सीखा किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस बेनिफिट करें।